stress in general? Yes, answer. Yes, it would be an interactive lecture. What is stress? Tension. Tension. Yes. और कोई definition है tension के अलावा? हाँ? Don't be afraid today. आज मैं कुछ चिल्लाना नहीं. Yes. Overthinking. Or any other thing? What you mean by stress? Anxiety. Anything? Yes. Rasopara. What is stress? Huh? Burden on brain. Or any other definition of stress? नहीं. नए प्रोफेसर को देख के जो हलचल होती है that is stress. और yes. अरे बोलो ना अभी today क्या मैं डांटने वाला नहीं हूँ. Today is the most safest day for you. After all, I will be teaching you anatomy in the first year, but today I will not teach anything, so you can answer me. Bolo. Yes. Can anybody provide me a definition of stress? And you all are telling me what? Anxiety, burden, और क्या बोला? Tension. But these are, I think, the synonyms for stress, right? What can you define stress? Now we are medical students. Now we have to define anything. No. So what is stress? Can anybody have? हाँ बोलो. It's a condition. Yeah. We feel that we are getting having our concern or something related to our career or something else. मुझे समझा नहीं. What you told? It is the नहीं मुझे सुनाई नहीं दिया. It's a feeling. It's a feeling. Okay. Yes, yes. It's a feeling. It's a feeling or emotions that we are concerned for the something that we might want to achieve, that we might want to do, which we haven't done yet. मतलब there is something which you want to achieve, and we are fearing whether we will achieve it or not. We have not done it yet. We have not done it. So we might get stressed. That's a feeling that we get. Suppose you are going out somewhere today, and you go out in the jungle. You have no water along with you, okay, and you don't see any road ahead. You don't see any road ahead. You are just roaming in the jungle without any survival food or anything, no water. So after say 4 hours of that, okay, what your body and mind will be subjected to? What it will be subjected to? See, it is deprived of what it is been getting regularly. First thing, बराबर है? And second thing is that you are also concerned about what is going to happen in the future, whether you will find a road or not, whether you will get lost, whether you will get killed. बराबर है? So there are two feelings simultaneously. One which is affecting your body, and other which is affecting your mind. ठीक है? What is affecting your body is that it is deprived of the essential nutrients or water or food. Okay, so bodily you are stressing your homeostatic body, right? Yes. So your body, which is living in a normal state, is not able to live in a normal state henceforth because it is deprived of the essential things. Okay, so it is bodily stress. Agreed? So if we can say कि कुछ भी normal है, अगर वो normalcy को affect होता है by any reasons, okay? So that reasons which are affecting that is stress. Near to the definition. And similarly, this is related to the body, which we can see, we can analyze. But if it is related to the mind, there may be many things in the mind which we want to know and which is affecting. हमको क्या लगता है हमेशा कि हमारा आगे क्या होगा? बहुत बार यही लगता है ना कि हमारा आगे क्या होगा, मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं. पहले नीट हुआ, नीट में मार्क्स कितने मिलेंगे, ये स्ट्रेस था. स्ट्रेस हो गया, एडमिशन कहाँ मिलेगा, ये इतना बड़ा केओस हो गया, इतना बड़ा हाई कट ऑफ हो गया, वेयर विल गेट मार्क्स, महाराष्ट्र में मिलेगा, इधर मिलेगा, किधर मिलेगा, वो एक स्ट्रेस था, राइट? आयुष में मिलेगा, एमबीबीएस में मिलेगा, फिजियो में मिलेगा, वो स्ट्रेस. सो यू आर कंसर्न, तुम्हारी बॉडी को कुछ नहीं हो रहा था, बट यू आर अफेक्टेड बाय द थॉट्स ऑफ योर फ्यूचर. सो योर माइंड वाज पुट अंडर सर्टेन थिंग्स व्हिच लेड यू टू इन अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. तो हम लोगों को बहुत बार जो अचानक से एकदम ऐसा पसीना आ जाता है, एकदम ऐसा धड़ हो जाता है, इज इट स्ट्रेस? Is it stress? Exactly. So looking at it at a scientific way, अगर you are in stress और तुमको एकदम से हार्ट रेट बढ़ जाता है, एकदम पसीना आता है, कैसे तो होने लगता है, is that stress or the effect of stress?
इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। तो बहुत बार हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, राइट? सो स्ट्रेस इज समथिंग बियॉन्ड। सो अगर हम लोगों को स्ट्रेस को सिंप्लीफाई करना है, इफ यू वांट टू डिफाइन स्ट्रेस, वी कैन से दैट इफ वी एज अ बॉडी और एज अ माइंड, है ना, वी आर मेड अप ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है? सो अगर हमारे बॉडी को या हमारे माइंड, ठीक है, हम लोग बॉडी का स्ट्रेस बाद में देखेंगे क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पूरा दिन, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडीली स्ट्रेस, बट अगर तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे विचारों को या तुम्हारे सेल्फ को कुछ चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव है सामने, ठीक है? इट कैन बी एनी ऑब्जेक्टिव, इट कैन बी अ डिजायर, ठीक है? एंड लेट अस डिफाइन, वी आर डिफाइनिंग, वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग। तो अगर हमें कुछ भी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट है, एक डिजायर है, सी आई वांट टू हैव, so it can be an object, it can be a desire. See, suppose I have a desire, I want to go to London, this is my desire, ठीक है? For you it might be to become a very good doctor, to find a good girlfriend, boyfriend, है ना, to find a good house, बराबर है, to marry a beautiful woman, मेल्स के लिए, है ना? तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है? Now when I am looking at my desired object or desired target, ओके, और वो पाने के लिए वॉट एवर आई एम डूइंग, ओके, एंड वॉट एवर आई एम फेसिंग, सी आई माइट बी टेकिंग अटेम्प्ट्स टू मेक दैट, सी, है ना, आई वांट टू अर्न मनी, आई वांट टू बाय अ बिग हाउस, ठीक है, मेरा टारगेट है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट टू रीच दैट टारगेट वॉट एवर आई एम फेसिंग एज अ सेटबैक, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रीच, ना, आई एम नॉट एबल टू रीच, आई हैव टू रीच, से आई हैव टू बाय अ हाउस इन 2 years, but in 2 years I don't see any possibility that I can make up that amount to buy that house. So what is happening? When I am going towards my goal, I am not able to go in that specified time limit, so I am experiencing what is called as stress. Okay, this you can apply to anywhere. Whatever you want to achieve in life, whatever your desire, what is your desire target, जो भी तुम्हारा है चीज, अगर उसे पाने के लिए तुम लोग मेहनत कर रहे हो और वो उधर तक जाने के लिए जो संघर्ष हो रहा है या जो तुम्हारे बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, जो रेजिस्टेंस फील हो रहा है, दैट कैन बी कॉल्ड एज स्ट्रेस. It is a more better definition of stress. बराबर है? Agreed to this definition? Okay. So now, what can this stress be? पहले तो ये सबको पता है, but I have to go through it. ठीक है? So किस किस चीज का स्ट्रेस हो सकता है बताओ? एग्जाम्स का हो सकता है, ठीक है? या तुम लोग अभी कितने साल के हो? 18, 18, 19, 20. इससे बड़ा कोई है? You are there. Okay. 21, 22 जो भी है, बट यू आर इन अ स्टूडेंट एज ग्रुप्स, ओके? तो तुम्हारे स्ट्रेस के कारण क्या रहेंगे? बच्चे का पढ़ाई रहेगा, बच्चे का पढ़ाई रहेगा, नहीं रहेगा. तुम्हारे स्ट्रेसेस क्या होंगे? मारामारी, क्या बोले? स्ट्रेस यू कैन कॉल इट, राइट? देन ज्यादा स्ट्रेस तुम्हारे में आता है वो है रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस, राइट? यू आर मेजरली ज्यादा टाइम क्या सोचते हो? मेरे ये दोस्त ने मुझसे ऐसा बिहेव किया, उसने ऐसा क्यों किया? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, छोड़ दो. होता है, तुम्हारे में नहीं होता वो तो अच्छी बात है, बट ओके. सो द स्ट्रेस which is caused by relations, okay? It not by सिर्फ फ्रेंड्स ही है, तुम्हारे घर वाले भी हो सकते हैं उसमें, है ना, कि घर वालों के साथ रहना है, यू आर लिविंग विद देम, यू आर लिविंग विद पीपल whom you don't want to live with. There might be things, ना, सबके पेरेंट्स होते हैं अच्छे, बट देयर आर सम रिलेटिव्स जो कोप करेंगे, अरे क्यों ऐसा पढ़ाई नहीं हुआ, क्यों नहीं कर रहे, है ना? तो देयर आर स्ट्रेस व्हिच कैन अराइज आउट ऑफ रिलेशनशिप्स, ओके? वो एक प्रकार का स्ट्रेस है. मॉनिटरी स्ट्रेस, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, उनके फादर्स मम्मी के पास शायद they might not be affording and still you want to study, still they might be under stress, but you are also under stress if your papa is giving some money. एक किसी ने समझो डोनेशन लेके एडमिशन लिया, उसको बहुत सारा पैसा देना पड़ रहा है, he is giving the money, he is taking the stress, but aren't you also in the stress because your papa is paying, because your papa is trying to give more money into it, so indirectly you are also in stress. You are smiling, okay? So that is one. Then एक बहुत अलग सा स्ट्रेस होता है, दैट इज आवर एक्सपेक्टेशंस व्हिच द पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, है ना? घर में मम्मी पापा एवरीबडी एक्सपेक्ट्स, अरे तू अभी डॉक्टर के लिए पढ़ रही है, अभी अच्छा पढ़ो, अभी ये करो, वो मत करो, है ना? ट्राई टू लर्न. इसका भी एक स्ट्रेस होता है ना, बोलते हैं ना सब लोग, अभी पढ़ाई करो, अभी नीट में कम मार्क्स मिले तुमको, अभी इधर करो, बोलते होंगे ना, ऐसा है ना? यही होता है. आता चांगले अभ्यास करा, आता पुढे जायचं तुम्हाला, आता विसरून जा मागचं सगळं, आता अभ्यासच करा, दुसरं काय बघू नका, हे करू नका, ते करू नका. This is what it is causing indirectly. It is causing stress to you, right? बराबर है? और कोई है स्ट्रेस? You can elaborate.
किसी किसी को ना अपने पास्ट डीड्स का स्ट्रेस होता है, अरे मैंने 12th स्टैंडर्ड में ये किया था, उसका अभी भी मुझे स्ट्रेस है। ऐसा होता है किसी को है, किसी को पास्ट डीड्स का स्ट्रेस, या बचपन में मैंने किसी को बहुत बुरा किया था, उसका अभी तक मेरे दिल में है। इट अफेक्ट्स। मैंने ना वो 11वीं के वैकेशन में मैं गाँव गया था, वहाँ पे मैंने कुछ किया है, वो मुझे अभी भी घूम के आता है मेरे दिमाग में कि मैंने ऐसे क्यों किया था, मैंने किसी को जख्म किया था, हर्ट किया था, जो भी है। बिकॉज यू माइट बी लुकिंग बिग फिजिकली, बट तुम्हारे मन अभी भी 18, 19, 20 साल के ही है ना। योर हार्ट्स आर स्टिल स्मॉल हार्ट्स, इजंट इट, कि बड़े हैं सब क्या है ना, मतलब स्टिल यू आर स्मॉल ना, मेंटली यू आर स्मॉल ना। तो हो सकता है यू माइट बी हैविंग सम गिल्ट, कभी किसी को गिल्ट रहता है, गिल्ट का भी स्ट्रेस रहता है, ठीक है। Why I am elaborating this? Because we want to talk on this in the next part. ठीक है। Then there is some environmental stress. किसी को environment का stress आता है। What is environmental stress? गर्मी हो रही है ज़्यादा, ये environment नहीं है। Environment यानी social conditions। हमारे आजू बाजू में क्या है, हम लोग जब आते हैं, अरे ट्रेन में बहुत रश रहता है, चढ़ने को नहीं मिलता है, बहुत टाइम खड़ा रहना पड़ता है, जाने के टाइम रिक्शा नहीं मिलता है, 4 लोग भर के जाते हैं, रिक्शा वाला कभी सुनता नहीं है, कभी आता नहीं है, मीटर से आता नहीं है ना। ये स्ट्रेस नहीं कॉज करता है, डज इट कॉज स्ट्रेस, है ना। तुम्हारे में कम होता होगा, जो ऑफिस गोइंग बाहर जाते होंगे उनको ज़्यादा होता होगा, है ना, तुम लोग को भी होता है। सो दिस इज अ प्राइम कॉज ऑफ स्ट्रेस। विरार स्टेशन में आओ, ईस्ट में गाड़ी खड़ा करने को जगह नहीं, रिक्शा वाले ऐसा इतना सामने कर दे कि पुल से उतर के नीचे जाने में ये नहीं होता है, यू कैन नॉट टॉक टू देम बिकॉज दे विल शाउट एट यू। सो दिस इज प्राइम कॉज ऑफ स्ट्रेस, राइट। देन देयर इज अनदर कॉज ऑफ स्ट्रेस, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत लोगों को ये सटल स्ट्रेस रहता है, दे फील कि दे आर लेसर, उनको ऐसा, हमें बहुत सारे लोग हैं, अगर तुम देखोगे, नोबडी विल टेल दिस बट एवरीबडी समहाउ और द अदर फील्स इनसाइड कि नहीं यार, मुझे कम आता है इन लोगों से, मैं थोड़ा सा कम हूँ, मुझे बोलने नहीं आता है, कॉमन स्ट्रेस, मैं बोलूँगा कैसे बाहर जाकर, स्टेज फियर, स्ट्रेस, है ना। किसी को लगता है कि उन्हें थोड़ा बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, किस को लगता है, हाथ ऊपर करो, आँख बंद करके ऊपर करो। देयर आर मेनी पीपल, मुझे भी था, मुझे तो कितना सारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। सो ये एक प्राइम कॉज है, यू नो दैट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रेस can affect your studies like anything. It can affect your studies like anything because तुम जहाँ कहीं जाओगे, तुम्हारे peers, तुम्हारे आजू बाजू के लोग, तुम्हें हमेशा ऐसे लगेगा अरे उसको समझा है, मुझे नहीं समझा। You will always have a setback. बहुत बार ऐसे लगता है, and then नहीं रे, जाने दे, क्या बोलने का, जाने दे, नहीं मैं कर लूँगा घर पे आकर। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि तुमको लगता है कि उसको समझा होगा। Whenever a क्लास में समझो कोई लेक्चर ले रहा है, ठीक है, एक किसी ने आके तुमको एक सेल बायोलॉजी सिखा के गया, तुमको ऐसा हमेशा लगेगा सबको समझा है, शायद मुझे ही नहीं समझा है, जाने दो ना, क्या पूछने का सर को, मैं ऐसा होता है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, मैं घर जाके पढ़ लूँगा, यूट्यूब में वीडियो देखूंगा, कॉमनेस्ट थिंग विच यू डू, करते हैं बहुत लोग करते हैं, आई नो दैट। सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ स्ट्रेस विच इज साइलेंटली अफेक्टिंग यू, दिस विल नॉट बी सीन आउटसाइड, not be felt, but it is affecting you. So this is one kind of stress which you are all feeling. Okay? Then there is another stress, sexual stress. Sexual stress मतलब क्या? सेक्स नहीं कर रहे हो तुम लोग, पर क्या बोलना चाहता हूँ मैं, बताओ। What do you क्या हो सकता है sexual stress at your age? What can be that? Yes? बोलो, you are now medical students, free to talk about all these topics. License है तुम्हारे पास, बोलो। Sexual stress is the stress which arises out of the fear whether you will be a good sexual partner or you will be able to perform that in future. बहुत लोगों को ये स्ट्रेस रहता है, बहुत सारे टीनेजर्स आर फेसिंग दिस स्ट्रेस कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं। पहला मेल्स का एंजाइटी रहता है, कहाँ से चालू होता है पता नहीं किसी को है कि नहीं, बट मेल्स एट दिस एज ऑल्सो हैव द एंजाइटी अबाउट साइज ऑफ देयर पेनिस, कॉमनेस्ट एंजाइटी, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रेस। ये लगता छोटा है चीज, लेकिन इसको इतना अफेक्ट होता है बिकॉज सी फॉर अ मैन, फॉर अ मेल, ओके, देयर पेनिस इज लाइक देयर मैनहुड, ठीक है, वो कोई देखेगा नहीं देखेगा, बट उनको लगता है कि दैट इज रिलेटेड टू मैनहुड। अगर उनको उसी बारे में डाउट है, अगर उनको डाउट है, दे विल फील इंफीरियर ओवर ऑल द अदर थिंग्स। उनको हमेशा लगेगा नहीं मुझ में कुछ कम है, वो बाजू वाले का साइड थोड़ा ज़्यादा होगा शायद, उसको जाने दो आगे। ये कॉमनेस्ट एंजाइटी है। एंड सिमिलर एंजाइटी इन फीमेल्स, मेरा ब्रेस्ट साइज कैसे होगा, मेरा ब्रेस्ट साइज इतना नहीं है, मैं अच्छी दिखती हूँ कि नहीं दिखती हूँ, माई हिप साइज इज नॉट,
This again is a common anxiety. You say yes or no. Yes, this is present. So this affects you. And we are elaborating the reasons why. What is the stressful events which you are going to face, right? So this physical stress, but related to the sexual matters, because आगे जाके उसका sexual matters में चढ़ो. So this stress is one major stress among yourselves. Then another stress is attraction वाला stress. तुम्हारा ज़्यादा टाइम, अभी तुम लोग पढ़ाई किए हो नीट के लिए, तो शायद तुम्हारा डाइवर्जन हुआ है कि नहीं पता नहीं, बट अंदर से तो लगता है कि यू आर अट्रैक्टेड टू द अदर जेंडर. नहीं आता इससे स्ट्रेस? आता है कि नहीं आता है? Stress arising out of attraction to the other gender. Yes or no? How many of you face this stress? You can raise your hand. Nobody is seeing you. आता है. It is common as stress. और ऐसे नहीं है कि सिर्फ मेल्स को आता है. ऐसा नहीं है. बहुत बार ऐसे लगता है. Listen. बहुत बार ऐसे लगता है कि ये स्ट्रेस मेल वालों का है, फीमेल वालों का ऐसा नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. Females also face the same stress. They also undergo through the same stress. उनको भी लगता है कि they should be acknowledged by men, acknowledged by boys, accepted by boys. So they also face the same stress. Don't you face? मैं अच्छी दिखती हूँ कि नहीं? Then why do females always look and see into the mirror, make up themselves? Because they want to be presentable. They want to be accepted by the people, accepted by the boys and all. So stress is both ways. It is there to you and to you both. And this covers major of your mental time. है ना? तुम्हारे अगर दिमाग का टाइम निकाले, 100 टाइम इज योर मेंटल टाइम. आउट ऑफ दैट साइलेंटली ये विचार तुम्हारा 30-40% लेके जाते हैं, है ना? और इमेजिन करो, अभी हमने जो रीजंस इलेबोरेट किए हैं, वो रीजंस तुम्हारा मेंटल टाइम कितना परसेंटेज में लेता है, खुद का ये कैलकुलेट करो. टेक अ पेज, गो होम एंड साइलेंटली कैलकुलेट वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड वॉट एवर दिस ऑल हेडिंग्स जो अभी हमने बताए, वो कितना परसेंटेज ऑफ योर टाइम लेके जाता है, और कितना परसेंटेज ऑफ टाइम एक्चुअली तुम्हारे पास खाली बचता है ना? यू विल, जिसका ज़्यादा बचता है देखो, लेकिन आई थिंक बहुत कम टाइम होगा विच विल फील कि यस माई टाइम इज ज़्यादा है, कम है, कितना है. सो मेक अ लिस्ट घर जाके टू सी व्हाट इज योर मेंटल टाइम विच इज affected by what kinds of stress. So this is the first exercise indirectly to define your stress or to elaborate what are your headings under which and what time that stress particularly is taking. Okay, understood everybody? So this lecture is not about stress only, it is about stress management, है ना? तो लेकिन हमको जिसको मैनेज करना है उसको पहले सीखना पड़ेगा ना. See, we are becoming doctors. तो डॉक्टर्स बनने के लिए पहले 2 साल हम लोग एनाटॉमी और पैथोलॉजी क्यों सीखते हैं? एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी. व्हाई डू वी लर्न? बिकॉज यू वांट टू नो व्हाट इज नॉर्मल, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एबनॉर्मल, राइट? सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रेस. सो दिस इज अबाउट स्ट्रेस. सो फर्स्ट दैट स्ट्रेस स्टार्ट्स विद इलैबोरेशन ऑफ द स्ट्रेसफुल थिंग्स. ठीक है? और एक स्ट्रेस है. क्या स्ट्रेस है बताओ? सोशल मीडिया वाला स्ट्रेस, है ना? जो तुम्हारा आई थिंक 80-70% ऐसा फ्लक्चुएटिंग टाइम लेके जाएगा, डायनामिक है उसका, है ना? कभी 100% टाइम मेंटल टाइम भी लेके जाएगा, है ना? इट रेंजेस फ्रॉम 50% टू अबाउट 100%. इट कैन टेक एंड इट इज सो एडिक्टिंग बिकॉज दिस ऑल पीपल अर्न आउट ऑफ यू, है ना? व्हाई इट इज सो? सी, कभी ये सोचा है कि इंस्टा, फेसबुक इतना अच्छा क्यों बनाया है, इतना अच्छा मेहनत से क्यों बनाया, कि इतना पावर है उसमें. सी, तुमको मैंने ऐसे 4 ऐप दे देता हूँ, ये ले लो 4 ऐप, तुम कितना टाइम वो ऐप में एनग्रॉस होते हो देखो, और फेसबुक और इंस्टा में कितना टाइम एनग्रॉस होते हो वो देखो. तो उनका एनग्रॉसिंग कैपेसिटी या एडिक्टिंग कैपेसिटी इज बियॉन्ड एनीथिंग. व्हाई? ऐसा कभी सोचा है क्यों है ऐसा कि फेसबुक इतना अट्रैक्टिव क्यों है? हैव यू एवर थॉट लाइक दिस ओवर दिस? व्हाई इज फेसबुक सो अट्रैक्टिव? व्हाट कैन बी द रीजंस? टेल मी. चलो बताओ. फेसबुक छोड़ो, इंस्टा. व्हाई इज इंस्टा सो अट्रैक्टिव? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द रीजन? यस, एक करके बताओ ना. यस, व्हाई इज इंस्टा सो एडिक्टिव, सो नाइस थिंग? क्या रीजन है? रील्स. यस, टेल. यस, उसमें सिलेक्टेबल, रिलेटेबल वीडियोस रहते. ओके, और क्या है?
एनी अदर रीजन? रिलेटेबल वीडियो रहते इसके लिए। मैं तुमको रिलेटेबल मेडिकल कंटेंट वाला ऐप देता हूँ, तुम्हारी बहुत रिलेटेबल है, देखोगी इतना इतना एडिक्टिवली देखोगे 100% टाइम। यस यस, बट दिस इज राइट रीजन, बट और कोई रीजन है? यस, लास्ट में जो फ्री है, लिसन ना, थिंक बियॉन्ड इट। एक ऐप जो फ्री है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है, बट स्टिल वो उसका एल्गोरिथम बनाने के लिए इतना मेहनत करते हैं कि ताकि तुम लोग उसमें एनग्रॉस हो सको, है ना। मतलब इंस्टा एंड फेसबुक आर यूजिंग यू इनडायरेक्टली फॉर अर्निंग मनी। तुमको क्या मिलता है इंस्टा और यूट्यूब ये देखने के बाद? कुछ नहीं मिलता है। जो तुम लोग देखते हो, इट गिव्स यू टेम्पररी डोपामाइन क्लिक, थोड़ा टाइम डोपामाइन बढ़ता है चॉकलेट खाने जैसा, एंड फिर यू गेट एडिक्टेड टू दैट चॉकलेट, टू दैट लेवल्स ऑफ डोपामाइन। कॉफी पसंद है किसी को, क्यों? बिकॉज दैट गिव्स यू अ क्लिक, वो ऐसा डोपामाइन सर्ज आता है ना ब्रेन में, तो वो इंस्टा देखने के बाद डोपामाइन सर्ज आता है। दे नो वेरी वेल, दिस इंस्टा पीपल, कि हाउ टू इंक्रीज योर सर्च, ठीक है। एंड दे आर सो चालू, अभी देखा है, दे आर सो चालू। क्यों बोल रहा हूँ? पहले इफ यू ओपन योर इंस्टा फर्स्ट टाइम, व्हेन यू एंटर योर जेंडर, ठीक है, यू एंटर योर जेंडर एज अ मेल, टेक अ न्यू अकाउंट, यू स्टडी इसको, इंस्टा को स्टडी करो, सी इसका एल्गोरिथम देखो। मेल का अकाउंट निकाल के खोलो इंस्टा को, it will first show you all the reels which are about females, about their sexual things, ये वो डांस, साड़ीज, कम साड़ी, कम कपड़े, गुफी जावेद, दिस ऑल विल कम। हाँ, यू स्टडी, मैंने देखा है, आई स्टडीड इट। वेट डोंट कॉल दैट। वो मेल अकाउंट, ओके, इफ इट इज अ मेल अकाउंट यू विल सी ऑल दिस। और कभी फीमेल अकाउंट करके देखा है ना? ट्राई करो, स्टार्ट अ फीमेल अकाउंट and look at it. What it will show you, पता है? It will show you about all makeup, lipsticks and ये and then you will start going into it and you will get engrossed into it because it is so intelligent. He will not let you go out. Insta तुम लोग टाइमर भी लगाओगे ना, तो तुम लोग उसको छोड़ नहीं पाते हो because it keeps you engaged. He knows what are your needs. अगर तुम जाने भी लगोगे ना, तो तुमको बीच में एक ऐसा वीडियो आ जाएगा कि जो तुम वापस खींच के लाएगा तुमको ना। So that is, see, I am not against Insta. I also use Insta, but the thing is that वो जो कंट्रोल है ना उसके ऊपर का, वो बहुत चला जाने में बहुत आसानी होती है ना। वो पहले के पुराने ज़माने में पिक्चर होता था, पता है, हम लोग साथ में थे, फिर कुछ हो गया और क्या हमारे हम लोग अपने क्या इमोशंस पार कर गए। इट वॉज अ कॉमन थिंग। देखा है तुमने? पुरानी पिक्चर नहीं देखे ना, तो ये होता था पहले कि आम्ही आमच्या भावना पार करून गेलो, मतलब उनको ऐसा लगता था कि दे हैड सेक्स, ऐसा उनको बोलना होता था। तो मतलब देयर वाज अ क्लाइमेट, देयर वाज बारिश, देयर वाज ठंडी, एंड देन दे केम टुगेदर एंड दे कुछ हो गया एंड देन दे लॉस्ट देयर फीलिंग्स एंड दे केम टुगेदर। सो ये बहुत बार इंस्टा तो हमेशा हमारे साथ करता है, हमेशा हमारे साथ करता है। लुक एट इट एट अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इट एंगेजेस यू एंड इट यूटिलाइजेस योर दैट प्राइम 100% टाइम ऑफ योर ब्रेन which you are ऐसे ही जाते हैं और उससे somebody earns. That is the most bad thing. See, you are all 20-21 years old students and I have made an app like Insta and I earn out of you, earn out of your delicate minds. It is so bad. Somebody is earning out of it. It's a marketplace. So look at it as a marketplace. है ना? हमको कोई भी मार्केट अच्छा दिखता है ना? बाजार में हम लोग जाते हैं, there are many big markets, big malls, capital mall अच्छा लगता है। रहने जाओगे क्या उधर? कैपिटल मॉल नालासोपारा में एक ही मॉल है हमारे विरार वसई में, इसके लिए कैपिटल मॉल। देयर में भी मेनी मॉल्स इन मुंबई, लेकिन हम लोग मार्केट प्लेस को कैसा करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं ना। वहाँ तक ही इंस्टा और फेसबुक को अप्रिशिएट किया करो। इट इज अ मार्केट प्लेस, लुक एट इट एज अ मार्केट प्लेस। तुम्हारा स्ट्रेस का जो मेंटल टाइम है दैट वुड डिक्रीज, बहुत बहुत गुना कम हो जाएगा तुम्हारा। ओके, सो आफ्टर ऑल दिस आई हैव 25 मिनट्स मोर। So these are all the reasons which cause you stress, right? इसके अलावा कोई reasons है which I might have missed? Any reasons which stresses you? Any reason which stresses you can tell me. तो हम लोग उसका solution देने का try करें। है कोई और reason? What? क्या? बोलो बिंदास। Ragging is a very stressful thing. Okay, because it affects you. It affects you. But now, okay, we'll look at it a bit. Ragging को रखते हैं एक जगह। और एग्जाम दैट हो गया ना, एग्जाम एकेडमिक स्ट्रेस। और कोई है स्ट्रेसफुल थिंग? यस, एनी स्ट्रेसफुल थिंग? हेल्थ में बी अ स्ट्रेसफुल थिंग फॉर फ्यू।
बिकॉज उनका हेल्थ थोड़ा कमजोर रहता है, उनको लगता है मैं कोप अप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना, मैं बीमार पड़ती हूँ चोटी ले, हेल्थ इज एन इशू। एनीथिंग एल्स? ठीक है, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे ऊपर स्ट्रेस के ऊपर? स्ट्रेस से सी अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे तो स्ट्रेस का पहला इफेक्ट है तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ेगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट, नींद चली जाएगी या नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, फूड हैबिट्स डिस्टर्ब हो जाएगा। देयर आर मेनी साइकोसोमैटिक इलनेसेस जो स्ट्रेस के कारण होते हैं। ऐसी मेनी पेशेंट जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है बट उनको बीपी का मेडिसिन लगता ही नहीं है, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट लगता है। उनको थोड़ा बहुत अगर उनका स्ट्रेस कम हो, बीपी कम्स डाउन, बीपी से डायबिटीज बढ़ता है, सॉरी स्ट्रेस से डायबिटीज बढ़ता है, तुम्हारा इंसुलिन लेवल अफेक्ट होता है, तुम्हारा बॉडी में एड्रेनलिन हमेशा ऊपर के इसमें रहता है। सो एड्रेनलिन इज अ हार्मोन व्हिच इज फॉर स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस हार्मोन इज एड्रेनलिन। सो योर एड्रेनलिन इज हमेशा हाई, सो एड्रेनलिन हाई होने से कारण हार्ट रेट बढ़ना, एंगर, ऑल दैट फाइटिंग मोड इज ऑलवेज ऑन। सो व्हेन योर एड्रेनलिन इज हाई यू आर ऑलवेज इन अ फाइटिंग मोड, तो तुम लोग गुस्सा हो जाओगे सबके ऊपर, झगड़ा करना, ये तू क्या करता है, एटीट्यूड, ऑल दिस थिंग्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम दिस। सो द स्ट्रेस इज द ओरिजिनिंग फैक्टर फॉर सो मेनी डिसीजेस, सो मेनी कंडीशंस, सो मेनी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, और किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ है ना। एक आदमी अचानक से कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगता है, हम लोग सारा चीज देख लेते हैं, अरे उसको बीमारी है क्या, साइकोलॉजिकल है क्या, डायबिटीज है क्या, थायराइड है क्या, एवरीथिंग वी सी एंड अल्टीमेटली वी लैंड कि नहीं इसको कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस है ना। सो स्ट्रेस इज अ मेजर इवेंट, इट अफेक्ट्स यू इन मेनी मेनी वेज, ठीक है। सो विल नॉट टॉक अबाउट दैट, यू हैव नॉट मेनी इयर्स remaining for it. Okay, so after we face stress, what happens to us? What are the ways which we can handle stress? Any idea which you have? अगर stress हो गया, हमने elaborate किया सारा stress का condition, उसका effects भी हमने देख लिया, okay? तो फिर उसको tackle कैसे करेंगे? Any ideas you have? Yes? Time management, okay? Agreed? और? Light या? मुझे नहीं, वहाँ से यहाँ मेरे कान में प्रॉब्लम क्या? राइट योर थॉट्स, राइट, हाँ, राइट योर थॉट्स, वेरी गुड, राइट योर थॉट्स। उसके बाद कम्युनिकेशन, वेरी गुड, एंड एक्सप्लोर योर हॉबीज, मतलब क्रिएटिविटी, वेरी गुड, यस, और मेडिटेशन, और we all know to handle stress, right? Otherwise हम लोग यहाँ नहीं होते। और क्या है? मम्मी पापा से बात करो, दोस्तों से बात करो, स्लीपिंग। सो चलो let us classify it into a broader perspective. Either see what our body does. We were all staying in the jungle, right? तो हम लोग जब जंगल में रहते थे तभी स्ट्रेस आता था ना। अभी हम लोग शहर में रहते हैं, पहले हम लोग सब लोग जंगल में रहते हैं। तो देयर वर ओनली टू वेज व्हिच आवर बॉडी लर्न टू अडॉप्ट। व्हाट वाज इट? फर्स्ट, आइदर फेस इट और रन अवे। ओके, यही बिहेवियर है ना। सो आइदर इफ यू लुक एट अ स्ट्रेस एज एन एनिमी व्हिच इज कमिंग, आवर बॉडी हैज ओनली वन मैकेनिज्म, आइदर टू फेस इट और टू रन अवे। तो हम लोग जब रन अवे करते हैं तो वेयर वी रन अवे इन स्ट्रेस? बताओ मुझे, वेयर वी रन अवे इन स्ट्रेस? अगर स्ट्रेस सामने आया तो हम लोग आइदर फेस करते हैं, ये सारे वेज जो तुमने बताए और मैं जो कुछ बताने वाला हूँ वो, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं भी, रन अवे मतलब किधर रन अवे करते हैं? स्लीपिंग में रन अवे करते हैं, बिकॉज इट क्लोजेज ना, स्ट्रेस है ही नहीं, भाग जाओ, सो जाओ, नींद में चले जाओ। वन, और एडिक्शंस, यू गो इनटू एडिक्शंस ना, चलो एक पेग मारो, भूल जाओ, बियर पियो, भूल जाओ। व्हाट इज इट? You are closing down, na? You are closing down. You are running away from the stress. Other way is that you pass into aloneness. जाने जो मुझे किसी बाहर जाने का ही नहीं, बाहर जाता हूँ तो स्ट्रेस आता है ना, बाहर मतलब पीपल्स में, लोगों में जाता हूँ तो स्ट्रेस आता है। I'll stay in my home या I'll stay in myself. चुपचाप रहो। It is actually, it is what? It is running away from the stress. You know? So we are basically adapting only our universal mechanism. Either we are fighting or we are running away. और running away मतलब किधर running away? Sleeping में, addictions में, है ना, खुद में, छुप जाओ,
अलोननेस, या फिर गुस्सा हो जाओ, इतना गुस्सा हो जाओ कि वो सामने वाला स्ट्रेस ही नहीं दिखेगा, उससे ज्यादा गुस्सा हो जाओ। ऐसा करते हैं ना हम लोग। अगर बीवी परेशान कर रही है तो क्या करते हैं, उसको जोर जोर से बोलते हैं, तो उसका स्ट्रेस हम लोग अपने एंगर से कवर अप करते हैं। दिस आर ऑल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म एक्चुअली, राइट? ऐसे ही होता है ना। सो आइदर वी आर फेसिंग और रनिंग अवे, तो विच शुड बी द आइडियल वे विच वी शुड डू? वी शुड रन अवे और वी शुड फेस? वी शुड फेस स्ट्रेस। सो वी शुड लर्न टू फेस स्ट्रेस, वी शुड लर्न टू फेस स्ट्रेस, राइट? ठीक। और एक देखो, स्ट्रेस सिर्फ तुमको ही नहीं है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। डज स्ट्रेस अफेक्ट ओनली यू? नो, स्ट्रेस इज यूनिवर्सल। यू मतलब कौन? नॉट अदर ह्यूमन बीइंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द एनिमल्स एंड थिंग्स लिविंग ऑन द अर्थ। एवरीबडी हु इज लिविंग ऑन द अर्थ हु हैज अ हार्ट व्हिच बीट्स हैज स्ट्रेस, है ना? वो बाहर का कुत्ता होगा, उसको भी स्ट्रेस है कि नहीं है? शाम को कोई खाना देगा कि नहीं देगा पता नहीं, रास्ते के नीचे आ जाएगा, ही हैज आल्सो स्ट्रेस। योर पेट कैट, उसको भी स्ट्रेस है, अलग प्रकार का स्ट्रेस है। एवरीबडी हैज स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज यूनिवर्सल। इट कांट, ऐसा नहीं है कि तुमको छोड़ के चला जाएगा, बाईपास करेगा। एवरीबडी हैज टू फेस स्ट्रेस। इट इज आवर डिफरेंशिएशन वेदर वी फेस इट और रन अवे, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी शुड रन अवे फ्रॉम स्ट्रेस, राइट? वी शुड फेस स्ट्रेस, वी विल लर्न टू फेस स्ट्रेस, ठीक है? Now, let us see कि why the stress so much affects you. मतलब ऐसा क्या है स्ट्रेस में कि वो आ जाता है और तुरंत तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। घर में कोई बोलता है और तुरंत तुम्हारा डिस्टर्बेंस चालू हो जाता है ना? इतना अफेक्शन क्यों है? इतना डायरेक्टली कनेक्टेड क्यों है ना? अगर कोई दोस्त आके तुमको हर्ट करके चला जाए, यू विल एंड अप इनटू स्ट्रेस। अचानक से मैं अभी बोलता हूँ कि चलो अभी तुम्हारा एग्जाम है, यू विल बी इन स्ट्रेस, है ना? व्हाई यू नो दैट? बिकॉज नाउ लेट अस स्टार्ट विथ or slightly in a different mode. See, we have to now differentiate your body now, ठीक है? your body and mind, ठीक है? ये स्ट्रेस किसको आता है? किसको आता है? तुमको आता है, मतलब एवरीबडी। बट इफ आई टेल यू स्ट्रेस, यू आर गेटिंग स्ट्रेस, तो मतलब किसको आता है स्ट्रेस? yes you, if I, it is in a slightly in a spiritual way I am asking this question, but ठीक है चलो, तो that affects you per se, you, है ना? What is your name? अनीता। अनीता। तो अगर मैं कुछ ये इधर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ, तो व्हाट इज अफेक्टिंग? अनीता इज अफेक्टिंग। सो अगर अनीता को हम लोग एक ऐसा डिफाइन करें, अनीता, ओके, एंड स्ट्रेस, ठीक है? स्ट्रेस एंड अनीता। स्ट्रेस इज डायरेक्टली कमिंग ऑन अनीता, अनीता इज अफेक्टेड बिकॉज देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन अनीता एंड स्ट्रेस, बराबर है? देयर इज नो स्पेस बिटवीन अनीता एंड स्ट्रेस। I'll tell you what I am trying to tell. Okay, what is your name? सपना। सपना है, और सपना को मैंने कोई अच्छा सपना दिखाया, ओके? और सपना सोचने लगी कि अब ये सपना कैसे पूरा करूं, है ना? She lands up into stress. Why? Now Sapna is here and that Sapna is inside her. There is no space between that Sapna and her Sapna. True Sapna. बराबर है? Now if suppose I recreate this situation, मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ओके? मैं सपना को और सपना को अलग करता हूँ, सपना को और उसके सपने को अलग करता हूँ, और बीच में गैप देता हूँ, बीच में गैप देता हूँ। तो क्या हो रहा है? अभी सपना को उसका सपना दिख रहा है, सपना को उसका सपना कैसे पूरा करना है वो दिख रहा है। अभी सपना उसके सपने से अफेक्ट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज सपना और सपना के बीच में स्पेस है, एंड वी ऑल हैव लॉस्ट दिस स्पेस is the true answer why you are all under stress. हमारे में और हमारे इवेंट में there is no space inside, है ना? अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोला जाए तो आपण आपलं आकाश हरवलंय, हमारे में हमारा आकाश नहीं है। व्हाट इज आकाश? आकाश यानी आकाश नहीं, आकाश यानी द एम्प्टी स्पेस which is around you. Why do you feel happy when you go to a silent resort and sit silently without anything? Because at that time you are there yourself, there is lots of space around you, and then that whatever events are there which are happening are away from you. So when events are away from you, you can face them, you can deal about them. अरे हाँ, अभी ये दोस्त आएगा तो मेरे पास स्पेस है, मैं प्लान कर सकता हूँ। That space can be not physical space, that space can be time वाला space. मेरे पास टाइम है, मेरे पास सोचने का वक्त है, या मेरे पास विचारों का वक्त है। Getting it what I understood? Everybody is understanding what I am trying to tell. So that space is lost, and the main
thing which I need to tell you today is regain that space if you want to manage that stress properly. Okay, so how do I regain my space? How do I regain my space? Tell me. स्वतःसोबत बसून आणि बरोबर आहे तिचा आन्सर. आणि येस, आउटवर्ड स्पेस. मेरे घर पे अगर किसी बाजू वाले ने इंक्रोचमेंट कर दिया तो आई कैन टेक, मैं झगड़ सकता हूँ. बट दिस स्पेस आई एम टॉकिंग इज द इनर स्पेस, राइट? सो अगर इनर स्पेस पाना है तो मुझे हैव टू गो इनसाइड, राइट? सो दैट मीन्स आई हैव टू मेडिटेट और आई हैव टू कम बॅक टू माय सेल्फ. ठीक आहे, हे जे सगळे तुम्ही सांगताय ना स्वतःजवळ बसा, म्हणजेच काय करा, यू हैव टू कम बॅक टू युअर सेल्फ विच यू आर लॉस्ट दैट, है ना? कितने लोग हैं जो एक्चुअली खुद में बैठते हैं, शांति से खुद से बात करते हैं? कितने लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? गुड. सो प्रॉब्लम उनको स्ट्रेस नहीं होगा. यू आर नॉट दैट मच स्ट्रेस्ड, राइट? आर यू? यू आर नॉट. यस. सो हम लोग है ना उसको एक आसान नाम देते हैं सब लोग, मेडिटेशन. बट व्हेन आई आस्क पीपल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेडिटेशन, नोबडी आंसर्स इट प्रॉपर्ली. मेडिटेशन का कंसेप्ट ही सबके लिए अलग है. ठीक है, सो लेट अस नॉट एंटर इनटू दैट टॉपिक ऑफ मेडिटेशन ओनली. ओके, लेट अस एंटर इनटू सिंपल टॉपिक. हमें खुद के साथ बैठना है. क्या करना है? सिंपल थिंग, एकदम सिंपल. जहां भी हो, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू सी द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड. हैपनिंग अराउंड यू मतलब बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर. तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीजें होती होंगी. आँख बंद करो, और आँख बंद करो सब लोग 1 मिनट, और देखो कि तुम्हारे मन क्या क्या हो रहा है आजू बाजू में. क्लोज क्लोज क्लोज. हाँ, ब्लैक दिखा. गुड गुड, ब्लैक दिखा तो यू आर एकदम, लेक्चर का जरूरत नहीं है. और क्या दिखा? यस, केओस, है ना? केओस दिखा ना सारा. केओस दिखा कि अच्छा दिखा कुछ? व्हाट यू सॉ? मुझे डिटेल्स मत बताओ, यू कैन टेल मी जेनरिक टर्म्स. क्या दिखा? डिड यू सॉ व्हाट एवर इज हैपनिंग? नहीं आएगा इतने जल्दी, बट किसी को समझा क्या मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ? डिड यू अंडरस्टैंड? So if you make a habit, see, it is very hard, but it is very simple. If you just try to see yourself, and try to see the things around you which are there. There may be, when you close your eyes, there may be, पहले तो कुछ chaos ही होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, बराबर. Second thing, इधर से उधर कुछ चीज़ें दिखेंगी जो आ रही है जा रही है, कुछ समझेगा ही नहीं क्या हो रहा है, सिर्फ आवाज़, सिर्फ chaos. ओके, अगर उससे ज़्यादा ट्राई किया थोड़ा बहुत तो दिखेगा कि अरे कुछ दोस्त, देन पेरेंट्स, किसी किसी को ड्रीम्स, है ना? तो ट्राई टू सी दिस. अगर देख भी लोगे ना तो क्या दिखेगा पता है? आई मेक अ लिस्ट व्हाट यू विल बी एबल टू सी इन फ्यूचर. हमारे थॉट्स दिखेंगे, कितने सारे जो हम लोग थॉट्स करते हो, अगर साइलेंटली यू ऑब्जर्व. दूसरा क्या दिखेगा? योर प्रेजुडिसेस, तुम्हारे पहले से बिलीव्स, है ना? तुम्हारे दिमाग में अगर समझो एक अचानक से बंदर आ गया, ठीक है, तो तुम लोगों को पता नहीं बंदर है. यू हैव योर प्री मेंटालिटी अबाउट दैट बंदर, ये उड़ी मारेगा, मुझे काटेगा, है ना? सो दिस इज योर प्रेजुडिस, योर बिलीव्स, वो दिखेंगे. उसके बाद में इमोशंस, है ना, या सपने दिखेंगे, डिजायर्स, है ना? सो यू विल बी एबल टू सी ऑल दिस थिंग्स. या फिर किसी ने कुछ बोला है, डांटा है, कुछ हुआ है, जस्ट आज से लेके मेक अ सिंपल हैबिट. घर जाके रोज 10 मिनट सुबह उठने के बाद या रात को, जब कभी टाइम है, जस्ट क्लोज योर आइज. ओके, लिसन, दिस इज एन एक्सरसाइज. जस्ट क्लोज योर आइज, बिकॉज नॉट एवरीथिंग कैन बी कवर्ड इन टुडेज लेक्चर. आज मैं तुमको एकदम ज्ञानी नहीं बना सकता. दिस इज जस्ट ए इंट्रोडक्टरी लेक्चर. ओके, सो जस्ट फ्रॉम टुडे स्टार्ट अ स्मॉल एक्सरसाइज. घर जाओ और ट्राई टू सी योर सेल्फ एंड योर थिंग्स विच आर अराउंड यू. ओके, वॉट एवर थिंग्स आर देयर, एंड मेक अ लिस्ट. जैसे उसने बताया, मेक अ डायरी, राइट योर थॉट्स. बट यहाँ पे थॉट्स मत लिखो, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखो कि तुमको अलग करो. मेक यूर सेल्फ एज यू, सपना, अनीता, जो भी है, एंड व्हाट इज अफेक्टिंग दिस सपना, अनीता, क्या क्या आ रहा है दिमाग में, व्हाट इज देयर इन द पेरिफेरी. इट मे बी योर रिलेटिव्स, इट मे बी योर इमोशंस, इट मे बी सम बॉय और गर्ल विच यू आर डिजायरिंग, इट मे बी सम थिंग, मोबाइल, समथिंग विच यू वांट टू गेट. सम थिंग्स वुड बी देयर इन योर पेरिफेरी ऑफ योर मेंटल थॉट्स. Try to make a chart out of it, and then gradually, as you daily do this 10 minutes exercise, you will feel कि ये अनावश्यक है, ये फालतू में आ रहा है मेरे दिमाग में, इसका कुछ जरूरत नहीं है. Then you will learn to deal with that.
एक कुछ इमोशन जो परसिस्टेंटली बार बार आ रहा है और तुमको अचानक से डिस्टर्ब कर रहा है, इफ यू लुक एट इट रोज एंड ट्राई टू सी इट एंड डिफरेंशिएट इट, देन यू विल बी एबल टू सी हाँ ये मुझे अफेक्ट करता है. एंड देन ऑनवर्ड्स आफ्टर फ्यू डेज ट्राई टू रिमूव इट आउट ऑफ योर साइक. Then you will feel कि your stress which is arising out of that will decrease. करोगे सब लोग? Leave aside what is meditation. Leave aside what किसी ने क्या बोला है. उसका यही नाम है मेडिटेशन. यही करते होंगे शायद. हम लोगों को उसको नाम भी कुछ नहीं देना. हम लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज करना है. Every day 10 minutes exercise. Find out what is going on in your psyche. Try to clear it. Try to deal with it. You might find many things. जैसे मैंने बताया किसी को गिल्ट है, किसी को पास्ट डीड्स है, किसी को ना एक हाथ चीज बहुत चलता रहता है मतलब चलत राहते काही लोकांना एखादी गोष्ट. आई हैड अ बॉय एंड ही वाज माय पेशेंट. उसके साथ क्या हुआ था पता है? वो जब छोटा था, ही वाज अ बॉय, नॉट अ गर्ल, ही वाज अ बॉय, एंड व्हेन ही वाज इन 6th स्टैंडर्ड ही वाज सब्जेक्टेड टू सम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बाय हिज रिलेटिव. तो उसको किसी ने ना मॉलेस्ट किया था, मतलब कुछ किया था उसके साथ. उसको पकड़ा था एंड दैट पर्सन ही वाज अ मैन ओनली, बट उसने उसके साथ कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी ट्राई किया होगा, पता नहीं. वो लड़का 6 से लेके ही केम टू मी व्हेन ही वाज इन बीए, फर्स्ट ईयर बीए, मतलब 13th स्टैंडर्ड, मतलब ही वाज 19 इयर्स. इमेजिन कितना गैप हो गया. बट अगर वो इतना डिस्टर्ब रहता था ना, ही वाज नॉट हैप्पी विद हिमसेल्फ. पहले तो उसको लगता था कि उसका बॉडी उसका है ही नहीं, मतलब उसको लगता था उसका बॉडी खराब है. He had all the misconceptions about his body कि नहीं मेरे साथ कुछ, मतलब he had what we call it, he had घिन about his own body. I don't know why, it was long back, 6th standard he faced that. फिर उसको ना अच्छा ही नहीं लगता था, मतलब उसको बड़े लोगों के साथ मिलना ही नहीं अच्छा लगता था, मतलब पुरुषों के साथ. he was a man, I am again telling. तो उसको लगता था कि नहीं people are not good. तो he was not, वो लड़कों में नहीं जाता था बिकॉज वो उसके दिमाग में था ना कि किसी ने उसके साथ कुछ किया है. तो बड़े लोगों के साथ वो जाता ही नहीं था. देखो कितने सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो गए. एक तो खुद के शरीर के बॉडी में डिसरिगार्ड, फिर दूसरा उसको उसके ही मतलब मेंस के साथ ही वो नहीं जाता था. फिर मेंस के साथ नहीं जाने के बाद सारे मेंस उसको बोलते थे ये हमारे में आता नहीं, ये गे है. उसको गे का लेबल लगा दिया कि ये हमारे साथ आता नहीं, शायद इसका कुछ ओरिएंटेशन अलग है. उसको बेचारे को और एक टेंशन कि मैं गे हूँ. हाँ तो उसको ऐसा ही लगने लगा ना. उसको क्या पता है उसके साथ क्या हुआ है 6th स्टैंडर्ड में. ठीक है, he tended more towards girls because उनको वो सेफ लगा. उसको वो सेफ लगते थे क्योंकि उसको मॉलेस्ट किया था मेल ने. उसको लगता था कि फीमेल्स आर देयर हिज फ्रेंड, तो वो फीमेल्स के साथ जाके बात करता था. वापस उसका गेट के ऊपर और एक स्टैम्प लगता था कि तू तो लड़कियों में ही रहता है. तो कितनी सारी चीजें हो रही है उसके साथ. और ये सब होने के बाद बेचारे का स्टडी अफेक्ट होता था. वो प्रोफेसरों के सामने भी नहीं दिखा करता था क्योंकि अगर वो उसको सामने देखता था तो उसके दिमाग में सटली वही चलता था पिछला वाला चीज. So he was not able to concentrate and it affected so much in his studies कि he landed up in a psychiatric situation where this happened. तो उसका सिंपल रीजन क्या था मुझे बताओ, क्या था? उसको क्या ट्रीट करना चाहिए एज अ डॉक्टर्स? what you would treat him first? क्या ट्रीट करोगे सबसे पहले? हाँ बोलो. यस, क्या ट्रीट करोगे? We have to go to the root cause. We have to go कि बाबा तेरे साथ वो जो हुआ था वो किसी एक गलत आदमी ने किया था. Not the whole world is bad, right? Not the whole world is bad. So we have to heal his past. We have to heal his past. So हमारे में बहुत सारे, हमारे में हमको ऐसा लगता है कि हमारे में पास्ट में कुछ नहीं, all clear. ऐसा नहीं है. Try to go into yourself. Try to see yourself कि actually तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या पास्ट में. Try to heal it. और अगर कुछ दिखाई दिए तो वो चीज़ को वहीं पे फॉरगेट कर दिया करो. ट्राई टू जस्ट लीव इट, हील योरसेल्फ फर्स्ट, तो तुमको अच्छा लगेगा. पुराने जख्म होते देयर मे बी मेनी फीमेल्स आल्सो जिनको ये चीज़ हुआ होगा, यही नहीं और भी कुछ हुआ होगा, बट वो सिर्फ अपने खुद को ही पता होगा कि क्या हुआ है. यू वोंट बी एबल टू टेल अदर्स. यू विल फाइंड इट ऑन योर ओन. यू आर इंटेलिजेंट पीपल, यू कैन फाइंड इट. ट्राई टू हील इट, ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, ट्राई टू सॉर्ट योर पास्ट. अगर कुछ लगा, फॉरगिव योर पास्ट. अपने को खुद को गिल्ट फ्री करो पुरानी चीज़ों से. ओके, तो ये एक चीज़ करो फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, एवरी डे 10 minutes डू दिस एक्सरसाइज. ट्राई टू फाइंड योरसेल्फ एंड द थॉट्स व्हिच आर देयर इन योर साइड, in your periphery. Try to address them. Try to point out to the thoughts which are disturbing you. This is the first step to manage yourself and manage your stress. Simple. ये बहुत simple लगता है लेकिन है नहीं. It is not that easy. Because when you sit for that 10-minute thing, तुमको खुद को दिखाई नहीं देगा.
तुमको वो सारी चीजें दिखाई देंगी जो तुम्हें नहीं देखनी है। ऐसे होगा, ऐसे होगा, बहुत बार होगा। सी इफ आई टेल यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, है ना, बिकॉज आवर साइक इज मेड इन सच अ वे, वॉट एवर यू गिव टू इट एंड टेल इट टू डू, इट वोंट डू। मैं अगर तुमको बोलता हूँ आँख बंद करके बैठो, तुम आँख बंद करोगे, लेकिन ऐसा लगेगा आँख कब खोलूँ कब खोलूँ। मैंने अगर तुमको बोला आँख खुला रखो सब लोग, तो तुम लोग आँख बंद करोगे, नहीं ये नहीं करना है ना। मैं तुमको बोलूँगा बंदर के बारे में मत सोचो, अभी आँख बंद करो सब लोग, हाँ आँख बंद, एक बार वापस 1 मिनट के लिए आँख बंद करो, एवरीबडी क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट, हाँ। और बंदर के बारे में नहीं सोचना है, कुछ भी चीज़ को सोचो, दुनिया का कुछ भी चीज़ सोचो, लेकिन बंदर के बारे में नहीं सोचना है। क्लोज योर आइज। ने कुछ देखा नहीं देखा, इट इज सो सिंपल। सो व्हेन यू ट्राई टू गेट रीड ऑफ योर थॉट्स आर देयर व्हिच विल कम फर्स्ट। व्हेन यू ट्राई टू गेट, अरे मुझे ये इसके बारे में नहीं सोचना है, वही चीज सोचोगे बार बार, तो दिस इज अ टेंडेंसी, इट इज नॉट तुम्हारे में प्रॉब्लम है, इट इज आवर साइक व्हिच इज मेड लाइक दिस। सो इट इज अ, मैं बता रहा हूँ एकदम आसान है, थियोरेटिकली इट इज वेरी इजी, 10 मिनट करो घर जाके, बट दिस इफ यू डू दिस सिंपल थिंग, ये पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का 6 साल का काम हो जाएगा। Try to do this simple thing. बाकी की चीजें छोटी छोटी है। I have made 18 points to tell you, but still I am in the first point. हाँ, तो क्या हो रहा है? बोलो बोलो। So try to, करोगे क्या? Would be interested in doing this? कर सकोगे तुम्हारे बिजी शेड्यूल में खुद के लिए 10 मिनट, ठीक है? ओके, सो व्हेन आई कम एंड टीच यू नेक्स्ट टाइम, तो मुझे पता ना, हर वीक आई टेक, हर महीने में एक बार पूछूंगा तुमसे, चलेगा? अभी लेक्चर 1 है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू मैनेज योर स्ट्रेस, व्हाट यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ, मैनेज व्हाट इज अफेक्टिंग यू मोस्ट, है ना। दिस इज द वे टू डील विद स्ट्रेस, खुद को देखा करो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेडिटेशन, सेल्फ एनालिसिस, बहुत सारी नाम दिए जा सकते हैं इसको। I have simplified you very nicely and told you in a simple word, ठीक है। ये जो भी मैंने तुमको बताया है, ये स्पिरिचुअल बुक्स में पढ़ने के लिए इतना टाइम लगेगा, यही सारा का क्रक्स मैंने बहुत आसान शब्दों में तुम्हारे एज के लिए बताया है। सो डू दिस, इट इज वेरी सिंपल लगता है और सिंपल है भी। शुरुआत में यू विल फील वेरी डिफिकल्ट कि नहीं आ रहा है मुझे, मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, मुझे बाकी सब दिख रहा है, वेयर आई एम नॉट सीन ओनली। तो वही है तुम्हारा सिचुएशन कि तुम खुद को, तुम्हारे नज़र में तुम हो ही नहीं, तो तुम्हारे नज़र में खुद को लाना है पहले, और फिर तुमको देखना है कि मैं कहाँ हूँ, आजू बाजू में क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज, वेन एवर यू आर नॉट एबल टू डू दिस, ठीक है, उसके लिए और एक उपाय है स्ट्रेस के। मैंने जब कहा कि 10 मिनट के लिए बैठो, तो यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, देयर वुड बी थिंग्स एंड थॉट्स व्हिच विल प्रेशराइज एंड पुल यू आउट ऑफ इट। नहीं, बाहर देखो, मोबाइल देखो, कुछ तो करो, 10 मिनट बाहर आ जाओ। At that time when you are facing difficulty in sitting at one place for 10 minutes, what you do is that take deep breaths, लंबे लंबे सांस लो, because our breath is a very powerful remedy, you know that breath अपना बहुत powerful रहता है ना। breath is a such a thing, if you can control your breath, you can control many things in the world, ठीक है। see, जो लोग runners रहते हैं, they can run marathons and ultra marathons because they can control how they breathe, है ना। तुम समुद्र के नीचे जा रहे हो, स्विमर हो, डीप सी स्विमिंग, इफ यू नो टू कंट्रोल योर ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ, यू विल बी एबल टू कंट्रोल एनीथिंग इन द वर्ल्ड। सो योर ब्रेथ इज अ वेरी 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 प्राइम थिंग, ठीक है। सो दैट ब्रेथ, उसको अवेयरली लिया करो, अवेयरली लेना मतलब क्या? हैव यू एवर सीन कि तुम लोग ब्रीथ कर रहे हो, एक्सेप्ट द ब्रेथ व्हेन इट शोज यू, तब तुमको ब्रीथ फील होगा। खुद तुम्हारा ब्रीथ कभी फील किया है? ट्राई करो, आँख बंद करो और खुद का ब्रेथ फील करना देखो, इतना ब्लिसफुल है टू फील योर ब्रेथ। जस्ट ट्राई टू सी हाउ यू आर ब्रीदिंग, हाउ नाइसली यू आर टेकिंग एयर इनसाइड, हाउ नाइसली द एयर इज गोइंग एंड हाउ नाइसली इट इज कमिंग आउट। इट्स अ प्लेजर टू फील योर ब्रेथ, है ना। करोगे? सो वेन एवर यू आर मेडिटेटिंग, नॉट मेडिटेटिंग, वेन एवर यू आर सिटिंग फॉर 10 minutes, take deep breaths if you are not able to sit, okay, and that 10 minutes you will be able to come back to our this basic principle of you and outside, ठीक है। सांसें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, नहीं तो इतने गाने नहीं निकले होते ना, तुम्हारी सांसों में तुम, फिर क्या तुम्हारी सांसों की खुशबू एंड ऑल दैट, क्यों है? बिकॉज सांसें यार इंपॉर्टेंट है ना, सांसें यार इंपॉर्टेंट। सांस यानी नॉट इन लॉस,
सांस यानी और breaths. Okay, so two things till now I have told you. Okay, I have 7 minutes more. In 7 minutes whatever I can finish I will try. So first thing is that thing is 10 minutes वाला, दूसरा वो 10 मिनट्स के लिए मदद करने के लिए ब्रीदिंग वाला चीज, दो चीज हो गए. ठीक है. नाउ सेकेंड थिंग इज दैट व्हेनेवर एनी सिचुएशन अराइजेस, ट्राई नॉट टू पैनिक. तुम्हारे पैनिक के ऊपर कंट्रोल किया करो. देखो अगर है ना वार्ड होता है, अगर कैजुअलिटी वार्ड है, ठीक है, और कैजुअलिटी वार्ड में एक सडन ब्लीडिंग वाला पेशेंट आ गया और तुमको उसको मैनेज करना है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है पता है? हाउ काम यू आर इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन. इफ यू आर क्यों अरे ये ब्लीडिंग हो रहा है, इसको बुलाओ, नर्स को बुलाओ, अरे ये बैंडेज आईवी के यू रैन द होल वार्ड इनटू केओस और पेशेंट मर जाएगा तुम्हारे केओस में, है ना. तो अगर तुम उधर शांति से सोच के भले कितना भी ब्लीडिंग होने दो, यू आर एनालाइज द ब्लीडिंग, पता है तुम्हें कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है. इफ यू अंडरस्टैंड इट, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड, व्हेन यू वोंट पैनिक. So whenever panic situation arises, try to control your panic. This is again a way to deal with stress. Panic control कर सकोगे, पैनिक नहीं करना है, शांत रखना है ना. हमारा कैप्टन धोनी था, हमें क्यों अच्छा लगता था? वो पैनिक नहीं करता. कितना भी सिचुएशन देखा है उसको, यूज्ड टू बी साइलेंटली ऑब्जर्विंग एंड डीलिंग. वो हार रहा भी होगा तो वो यूज्ड टू बी साइलेंट, है ना. एंड अनदर थिंग यू नो अबाउट विराट कोहली. हैव यू सीन शुरुआत का विराट कोहली? आई ऑल्सो लाइक हिम, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब वो शुरुआत में खेलता था, ही वॉज अ टेम्परामेंटल प्लेयर. बहुत गुस्सा होता था, है ना, और गुस्से में ना यूज्ड टू लूज एंड यूज्ड टू गेट आउट. आफ्टर सम इयर्स इफ यू सी हिज क्रिकेटिंग पैटर्न प्रॉपरली, आफ्टर सम इयर्स है ना, कुछ टाइम के बाद वो शांत हो गया. देखा उसको ऑब्जर्व करो, वो पहले जैसा था और समथिंग हैपेंड आफ्टर हिज डॉटर्स बर्थ माइट बी, देन ही बिकम लिटिल बिट काल्मर, है ना. उसका इमोशंस उसने कंट्रोल करना सीखा, उसका प्ले देखो इम्प्रूव हो गया. He learned that technique. He learned to remain calm. उसका temperament जो होता था, he learned to control his temperament. That same thing affects you all. You are also learning something good. And if you panic or you go through your temperaments, गया. Try to be calmer. Try to understand the situation. Okay? Social media we have talked already. कि डोंट रिसोर्ट टू सोशल मीडिया. हम लोग क्या करते हैं? भाग के सोशल मीडिया में जाते हैं. चलो कंटाला आ गया बहुत बार, कट देखो इंस्टा में क्या रील्स आते हैं, काट करते रहते हैं, है ना. वो स्ट्रेस टेम्पररी चला जाता है, बट वो चला नहीं जाता, तुम्हारे अंदर जाता है और फिर वो बाहर निकालना मुश्किल हो जाए. तो जिस टाइम स्ट्रेस आए ना, उसको उसी टाइम हैंडल करना सीखो. अगर नहीं हैंडल हो रहा है, ट्राई टू स्पीक आउट, ट्राई टू फाइंड आउट वेज फॉर इट. ओके, हैव टू वाइंड अप. Try to love yourself. Don't try to pamper yourself. What is the difference between loving yourself and pampering yourself? बोलो. खुद को प्यार करना और खुद को पैम्पर करना, इसमें क्या फर्क है? Can anybody tell? Yes. अरे ये तो आसान है, बताओ. Yes, है ना. तो this is true. But यही है कि खुद को प्यार करना सीखो, यानी क्या मैंने try to रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड ट्राई टू लव योर बॉडी ऑल्सो. कि नहीं ये मेरा हाथ है, किसी दूसरे का नहीं है, मुझे ही दिया है भगवान ने, तो मेरी आंखें, ट्राई टू टेक केयर ऑफ देम. ये मेरी बॉडी है, मेरा हेल्थ है, मेरा स्टमक है ना. ठीक है, तो उसको लव करो. उसको पैम्पर करना मतलब नहीं मेरा ही है, पकड़ के रखो उसको. नहीं मैं मेरा हाथ ऐसे करते मत बैठो. दैट इज लविंग योरसेल्फ, है ना. सॉरी, पैम्परिंग योरसेल्फ. सो ट्राई टू रिस्पेक्ट एंड लव योर बॉडी, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु इज यूनिक फॉर योरसेल्फ, और कोई नहीं. लेकिन ये खुद का जो इंपॉर्टेंस देना है ना, वो इतना बड़ा भी मत करो कि उसको एटीट्यूड लगने लगे या इगोइस्टिक लेवल तक मत जाने. कीप इट एट एन ऑप्टिमल लेवल. हाँ, नहीं तो मैं ही बड़ा हूँ, मुझसे ही प्यार है मुझे, बस दूसरे किसी से नहीं, है ना. तो उतना ही प्यार करो खुद से जो टॉलरेबल लिमिट्स में है, और दूसरों से भी प्यार करो, आजू बाजू के लोगों से भी प्यार करो, है ना. प्यार इज नॉट वन सिंपल थिंग जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ किया है. लव इज कंपैशन. हैव बी कंपैशनेट टुवर्ड अदर्स. अगर मैं हूँ तो सामने वाला भी है ना, ही इज ऑल्सो लविंग हिमसेल्फ. जैसे मैं यूनिक हूँ, वो भी यूनिक है ना. ट्राई टू बी कंपैशनेट फॉर अदर बीइंग्स. तुम्हारे आधा स्ट्रेस कम हो जाएगा. ये आदमी ने मेरे को ऐसा देखा, ये आदमी ने मेरे को ऐसा किया, इसके साथ तो मैं बात ही नहीं करूँगा, ये छोड़ दो, ये स्ट्रेस देता है, तुमको स्ट्रेस देता है. ठीक है, ये कभी देखा है? अगर मैं इसके ऊपर गुस्सा होता हूँ, ठीक है, गुस्से का इफेक्ट किसमें होता है? मुझ में ही होता है. मेरा ही हार्ट रेट बढ़ रहा है,
है ना. इफ आई गेट एंग्री ऑन यू और यू नॉट स्टडी, देखा तुमने पढ़ाई नहीं की है, मैं तुम पे गुस्सा हूँ, लेकिन अफेक्ट किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है. जब तक मैं तुमको थप्पड़ नहीं मारूँ तब तुमको अफेक्ट हो, लेकिन जब तक मैं तुमको थप्पड़ नहीं मारूंगा, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन माई सेल्फ. आई एम द बैटलफील्ड, isn't it? मेरा ही हार्ट रेट बढ़ रहा है, मेरा ही अफेक्ट हो रहा है. सो डोंट डू दैट विथ योरसेल्फ, है ना. ये छोटी छोटी चीजें मत रखो, ग्रजेस एंड ऑल दैट छोड़ दिया. ओके. एंड लास्ट, बैलेंस योर लाइफ. लिसन to मतलब for you ना, try to do everything whatever you want to do, but सबके लिए ना एक लिमिट रखो. कुछ चीज़ों को बाद में निकालो. फर्स्ट, जो चीज़ें बुरी हैं, which are bad, which lead you in some traps and all that, don't go for that. Don't go for alcohol, smoking, all these things temporary relief देती है. They are not permanent solutions for anything except they land you in respiratory diseases and liver diseases and all that. तो वो नहीं करो. उसको छोड़ के जो भी तुम्हें करना है वो बैलेंस लाइफ. हैव योरसेल्फ, योर स्टडीज, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, सबको जगह दो अपने आप. योर क्रिएटिविटी, योर हॉबीज, योर गोइंग आउट, एवरीथिंग को एक अच्छी तरह से बैलेंस करके रखो. ओके. एंड when we try to search for answers, हम लोग कैसे आंसर्स बाहर देखते हैं, राइट. हम लोग बाहर देखते हैं. अगर हमको आंसर नहीं समझे तो हम लोग क्या करते हैं? गूगल देखते हैं. आजकल आंसर नहीं समझे तो क्या करते हैं? गूगल देखते हैं. इसका क्या है? व्हाई इज द क्लॉक लाइक दिस, व्हाई इज द हैंड्स मूविंग लाइक दिस. इसी गूगल, वी हैव अ हैबिट ऑफ गूगलिंग आउटसाइड. लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हारे अंदर की होती है ना, तुम्हारे अंदर होती है, who you will ask this for your own self, and how do you will get that answers. ये आंसर तुम्हें कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? When you sit with yourself, learn with yourself, है ना. एप्पल किसके पास है? एप्पल में हम लोग क्या बोलते हैं ना, सीरी को बुलाते हैं ना, हे सीरी. एप्पल की कोई यूज करता है, हे सीरी यूज को बोलते हैं ना हम लोग. तो सीरी हमको सब ढूंढ के देता है ना. तो तुम्हारे अंदर वाला सीरी तुम्हारे में ही है ना. ट्राई टू बी योर ओन सीरी. तुम खुद का सीरी खुद बनो. बनोगे क्या? समझा मैंने क्या कहा? हेलो. ट्राई टू पिंक शर्ट, लुक हियर, यू ओनली शर्ट नहीं, ड्रेस उधर मत देख. सो व्हेन यू वांट टू फाइंड आंसर्स विद इन योरसेल्फ, ट्राई टू हैव अ सीरी एंड लेट दैट सीरी बी योर ओन सेल्फ. तुम खुद ही खुद का सीरी बनो. ठीक है. आई एंडेड इन टाइम. बहुत बड़ा टॉपिक है. होप सो आई हैव गिवन यू द क्रक्स, जो मुझे लगा तुम्हें देना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 6 years. और ये जो भी मैंने बताया है ये अगले 6 साल तक करो. यू विल बी अ गुड स्टूडेंट, बिकॉज सी इट इज़ नॉट ईजी. मेडिकल कोर्स इज नॉट अ ईजी कोर्स. यू हैव बीन इन अ मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स. रिमेंबर, हमें लगता है कि MBBS में एडमिशन, BMS BHMS में एडमिशन मिलना आसान है, उसका कोर्स ईजी है, हो जाते हैं सारे डॉक्टर्स. ऐसा नहीं होता. दिस इज द ओनली कोर्स वेयर यू गेट अ चांस to be with the patient, to be with the patient's life, to deal with the patient's life, to take decisions about his life, है ना, and to take decisions about his all dimensions of health, mental health, physical health, every health. So you have to learn so many things in life. Medical यानी सिर्फ एनाट बायोकेम इसका पढ़ाई करना नहीं है. It is more beyond that. To become a doctor, you have to learn so many qualities. तो अगर इतना सारा क्वालिटीज करना है तो तुम्हें एक अच्छा इंसान पहले होना चाहिए. And for all that, stress तुमको अफेक्ट मत होने दो, because that stress will not let you become all that which you want to become. So let us fight that stress. Okay? So let's stop.